Wishing all of you a very happy new year. The new financial year has started. This is the first learning session that I'm starting off. Uh, Quickly on your chat boxes, if you could just confirm if Hindi, English, or Marathi, these are three languages I can speak. If English and Hindi is okay with everybody, just let me know on your chat box which is a preferred language. All languages are okay. Fantastic. Very nice. Okay. क्योंकि बीच बीच में बात करते वक्त या तो हिंदी बोल दूंगा या तो इंग्लिश बोल दूंगा, बट what I'm going to take you through, and today's subject is very important for all of us because all of us are in search of consultants, all of us are in search of coaches, mentors, guides who could help us do things. And at School of Inspirational Leadership, over a period of time, we've become a consulting company that probably has with a complete journey for people to either get listed or have private equity invested into it as well. So उस तरीके की जर्नी हम बिल्ड कर चुके हैं लोगों के लिए, right? So whether it is a 10 crores business or a 50 crores business, from 50 crores, the companies have moved on to 100, 200, 500, 1,000 crores. There are over 13 companies that we've listed in the last 10 years. And uh, in process, while I'm talking to you right now, there are 4 companies that are already in process of getting listed. Uh, our job as strategic consultants is to make sure that the organization grows, and in that process, training, coaching, consulting, partnerships, alignment, joint ventures, process, system, ERPs, all of this is a part of that journey. Because किसी को शायद लोगों की तकलीफ है, किसी को प्रोसेस की तकलीफ है, किसी को पैसे की तकलीफ है, किसी को सेल्स की तकलीफ है, किसी को मार्केटिंग की तकलीफ है, किसी का बिजनेस स्टैग्नेंट है, फॉर वट एवर गॉड डैम रीजन, इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग राइट इन द बिजनेस एंड you are not at the position where you deserve and desire. Okay, से assuming मैं चाहता हूं कि मेरा धंधा आज तक जब तक कर रहा हूं मैं, तो यार ये कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। पर अब मैं 100 करोड़ का नहीं हूं, मैं आज 50 करोड़ पे हूं, 20 करोड़ हूं, 25 पे हूं। So our job is to come in the company and make sure that you reach that desire of 100 crores. Hence, the first program that we do is also called as Burning Desire. So how many of you feel that there is a gap between where you are and where you should be? Okay, on your chat boxes, just write yes. We are not looking at any numbers right now. On your chat box, just write down yes, I feel where I am versus where I can be, there is a gap. Okay, but I don't know how to reach there. There's a possibility that I don't know how to reach there. There's a possibility that I have tried so many things. I've went to different coaches, I've went to different consultants, but things have not happened in the right form. And that's one of the reasons why I'm scared today. कुछ लोग डरते भी हैं, यार इतने लोग हैं ना, और सब सही भी है, ये भी नहीं है कि सब सही नहीं है। Everybody is right at the position, but fundamentally I have not reached there. मतलब सब सही भी है, कोचेस भी अच्छे हैं, ट्रेनर्स भी अच्छे हैं, कंसल्टेंट्स भी अच्छे हैं, पर मैं वहां पे पहुंचा नहीं हूँ। एंड रिजल्ट ये है, मैं वहां पे नहीं पहुंचा। राइट, सो ऑन योर चैट बॉक्सेस आई एम वेटिंग फॉर ऑल द रिस्पॉन्स। ओह, आई सी। ओह, ओके। Okay, people have already started written down. They have written down the answer. So thank you very much for this. So fundamentally, what SIL does is helps you bridge that gap between where you are versus where you want to be. Okay, where you are versus where you want to be. Now, to my experience, the shortest time to reach where you want to reach in a specs, एक 3 साल का specs है. So I'm going to give you all live examples, live places, live companies. I'm going to tell you the live process that we actually do. If you can do it for yourself, go ahead and do it, because it's a process that will help you to make sure that you are working on the path of scalability. Now, how many of you feel that 10x is possible in my business? पहले possibility को देखते हैं, right? 10x का मेरे possibility इंसान की होती है, पोटेंशियल मार्केट में होता है। ओके, सो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको कितना लग रहा है कि 10x धंधा करने की पॉसिबिलिटी मेरे 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 धंधे में है। अब कुछ धंधे हैं जिसमें 10x करने की पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, ओके, बट 10x करने की पॉसिबिलिटी मेरे धंधे में है। How many of you, please write it down on the chat box. I'm waiting for your responses on that chat box, because if it is
if you do not have if you don't feel that there's a possibility of making it, then doing that business itself is a wrong business. Okay, because first is your gut, right? First is your feeling, right? Uske baad market ka potential aayega. So quickly, now, how many of you feel that there's potential in the market only also? How many of you feel that there is potential in the market? कि potential market का होना बहुत जरूरी है. Okay, on your chat box, keep going, keep going. If you really notice, why is it that there is potential and there is possibility and I'm not reaching there? Okay, I'm not reaching there. I want you to write down the top 3 reasons that you feel. Top 3 reasons that you feel. These are the reasons why I feel I'm not reaching there. Go ahead, on your chat boxes, write down the responses. On your chat boxes, write down the responses. Top 3 लोग हो सकते हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, प्रोसेस नहीं है मेरे पास, मेरे को कस्टमर के पास कैसे जाने का मालूम नहीं है, मैं 30 40 50 करोड़ पे तो पहुंच गया हूं, पर इसके आगे जाने का तरीका नहीं मालूम. कुछ भी हो सकता है. सो थिंक, right? You have invested 45 minutes in this webinar. Think ki what could be the possible reasons of why I'm not happening, why things are not happening in the business the way I look at them. Okay, think. Go ahead and let me know. Is it because of people? Is it because of process? Is it because of sales? See, somebody's writing sales, process, team. Okay, क्या कारण है? According to your understanding. According to your understanding. So I'm not saying कि आप सही हो या गलत हो, मैं बस ये पूछ रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज आपको कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी आपके बिजनेस में तभी जाके इंप्रूवमेंट ला पाएगा अगर आपका विजन है इंप्रूवमेंट लाने का, या आपका विजन है ग्रोथ का. पीपल कैन हेल्प यू, सपोर्ट यू, कंसल्ट यू, गाइड यू, बट इफ इट इज नॉट देयर इन यू, देन नोबडी इज गोइंग टू डू. फिर वो पुश करना कोई मतलब ही नहीं है, राइट? बट इफ यू आर 500% कन्विंस्ड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए गए तो हम वहां पहुंच सकते हैं, राइट? then there is a partnership that is possible, right? So Sanjeev writes sales, staff, process, competition. Suresh writes cash flow, process, people. Fantastic. Thank you very much for everybody noting it down. Now I'm going to create a small diagram for all of you here. Okay, and you please tell me whether I'm making sense or no. Okay, you please tell me whether I'm making sense or not. Now what I'm going to do is I'm going to make a small, as I said, I'm going to make a small diagram. Assuming and this is a small example before we get into the subject, okay? There's a small example to this. Let's look at this. When I was born, I did not know what is a bicycle. जब पैदा हुआ था तो मैं नहीं जानता था बाइसिकल मतलब क्या होता है. ओके, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 5 6 साल की उम्र हुई, तब पता चला बाइसिकल का मतलब 2 पहिए होते हैं, एक हैंडल होता है, उसको पेडल किया जाता है और फिर वो बाइसिकल आगे घूमती है, इसको बाइसिकल बोलते हैं. शायद माँ ने बताया, पापा ने बताया, टीचर्स ने बताया, भाई बंधु, चाचा चाची जो भी थे मेरे टीचर्स तब के, मुझे तो तब बताया, तब मुझे ये पता चला इसको बाइसिकल बोलते. अब ये होने के बाद मुझे वो बाइसिकल चलाने नहीं आती. ओके, तो फिर कोई शायद बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा, या माँ या चाचा चाची, किसी ने वो पीछे पकड़ा, मुझे बिठाया. मैं डर रहा था वो करने के लिए, पर वो धीरे धीरे 2 4 बार गिर पड़ के समझ के मैंने साइकिल चलाना सीख ली. फिर एक वक्त आया जब मैं बड़े आराम से वो साइकिल चला पा रहा था, और फिर ऐसा भी वक्त आया कि मुझे अगर हैंडल नहीं भी है, राइट, विदाउट हैंडल भी मैं साइकिल चला पाता था. मतलब हाथ छोड़ छोड़ के थोड़ी मस्ती में मैं साइकिल चला पाता था. क्या ये सबके साथ हुआ है? हैज दिस हैपेंड विद एवरीबडी इन दिस रूम? अज्यूमिंग कि आप साइकिल बोलो, कार बोलो, आप कोई भी वाहन बोलो, कोई भी नई चीज सीखनी बोलो, ये क्या सबके साथ हुआ है? प्लीज राइट डाउन यस और नो ऑन द चैट बॉक्स. अगर अगर आप यस लिखते हो तो आप इंसान हो, ना लिखते हो तो आप भगवान हो. राइट, राइट. So this has happened. But what has happened with you, I'll tell you. And this is happening in the business also, by the way. Okay. There is a stage of your business. Okay. There is a stage where you don't know. So I don't know. I don't know that I don't know. It is called
सबकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। इसका मतलब मैं जानता ही नहीं कि मैं नहीं जानता। ये एक स्टेज होती है दिमाग की। ओके। अब ये जब इस स्टेज के बाहर निकलता हूं, जब मैं इस स्टेज से बाहर निकलता हूं, तब जाके आई सी दैट द प्लेस दैट आई एम इन इज कॉल्ड आई नो दैट आई डोंट। मैंने ये तो पता है मेरे को ये साइकिल है, पर इसको चलानी कैसे है पता नहीं है। इट्स कॉल्ड कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दोस्तों, आप जितने इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, आप सब या आप में से कुछ इस स्टेज में है। वो गैप क्यों है? हम और आप में से कुछ इस स्टेज पे है, जिसको स्टेज 2 कहा जाता है, या आप स्टेज 1 में हो। ओके। या आप स्टेज 1 में हो। राइट। नाउ व्हेन वी से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या हो सकती है? स्टेज 3 होती है आई नो दैट आई नो। इट्स कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस वजह से मुझे काम मिलता है, इस वजह से मुझ पे भरोसा रखा जाता है, इस वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, इस वजह से मेरी संस्था पे कॉन्फिडेंस आता है। तो सवाल यह है कि क्या आपकी संस्था कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है? क्या आपकी संस्था कॉन्शियसली मैं नहीं जानता, ये भी समझना कॉन्शियसनेस है। जब स्टेज 2 में होती है संस्था, या स्टेज 2 में इंसान होता है, तब वो पढ़ाई लिखाई के सिलसिला शुरू करता है, तब वो और जानना चाहता है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस है ये पता चल गया ना। मैं जानता हूं एयरप्लेन क्या है, पर मैं उड़ाने नहीं जानता। अब मेरी इच्छा है कि मैं वो एयरप्लेन उड़ाऊं, तो मैं सीखने जाऊंगा, वरना मैं सीखने नहीं जाऊंगा। इसीलिए सबसे पूछा कि मैंने डिजायर्ड स्टेट और एज ए स्टेट में गैप है, ये कितने लोगों को पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंस ही अपने को पीछे रख रहा है। इनकॉम्पिटेंस कौन सी चीजों का हो सकता है? इनकॉम्पिटेंस हम कैसे हायर करते हैं। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है हम कैसे प्रोसेस लगाते हैं। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है हम पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है कि हमारी आदतें, हमारा दिन हम कैसे बिताते हैं। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है क्या सिस्टम लगाई हुई है। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है डेटा का। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है सिस्टम्स का, प्रोसेसेस का। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है डिस्पैच का, कस्टमर एनपीएस का, सीएसआई का। कितनी सारी इनकॉम्पिटेंस हैं जिस वजह से मेरी संस्था जिस जगह पे पहुंचनी चाहिए, वहां पे वो पहुंच नहीं रही। ओके। अब जब तक वो संस्था कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट नहीं होती, तब तक उसे एक स्पीड नहीं मिलती। और उस स्पीड में पहुंचाने के लिए कुछ विशिष्ट तरीके के प्रोसेसेस किए जाते हैं। उस प्रोसेसेस का नाम, उन प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करना, उन प्रोसेसेस को समझना, उन सिस्टम्स को अप्लाई करना, उस तरीके के लोग टीम में लाना, उस तरीके से फाइनेंस मैनेज करना, उस तरीके के नंबर्स को भी उस आईने से देखना, ये बहुत क्रिटिकल है। तभी जाके आप देखोगे कि संस्था ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो रही है। नाउ इसके आगे की स्टेज है आई नो। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब मेरी आदतें। तो यहां पे न्यू हैबिट्स, न्यू बिजनेस हैबिट्स फॉर्मेशन, एंड ओल्ड बिजनेस हैबिट्स डिलीशन। ये जब तक नहीं होता संस्था में, तब तक संस्था आगे नहीं जाएगी। आई रिपीट व्हाट आई सेड। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो इज सबकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। आई नो दैट आई डोंट नो इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। यहां पे अगर आपके गोल के प्रति, या आपके धंधे के प्रति, आपके विजन के प्रति आपकी शिद्दत नहीं है, यहां पे शिद्दत का काम है। यहां पे वो मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बदलाव करना है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यार ये जो मैंने सवाल पूछा था, सेल्स में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम है, और कितना मैसिव एक्शंस ले रहा हूं वो चेंज करने में। आप जानते हो नहीं आता, या आप जानते हो नहीं, you know that you're not competent about it, but still how many of you keep dragging? Just write down I keep dragging. चल रहा है, चलने दो। कैसे हो रहा है, चलने दो। I keep dragging.
Write it down on the chat box and be very honest to you, because my intention is very, very pure. In 45 minutes, I should be able to give you what you've come here for. Okay? So if you're consciously incompetent, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, इसका मतलब क्या है? सॉरी, आप नहीं हो, शायद वो प्रोसेस हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, और मैं उसी इनकॉम्पिटेंस से नया रिजल्ट पैदा करना चाहता हूं, तो कभी नहीं होने वाला. इट इज कॉल्ड इंसैनिटी. यूजिंग द सेम मेथड टू डिलीवर अ न्यू रिजल्ट इज अ insanity. You have to change the method. And if you have to change the method, you got to be motivated to change the method. And that motivation comes if you have a bigger vision in mind. That motivation comes if your mission is bigger than what you have right. Only then that change will happen in you as entrepreneurs, and then it will start reflecting in your business. But the consulting process that we implement has incubated all of these. Now that takes me to the next part of it, and have a look at this, what I'm saying. Okay, I'm going to explain you कि एक scalable organization चलती कैसे. Okay, आप खुद देख लीजिए क्या ये सारी चीजें आपके पास है. अगर नहीं है, क्या करना पड़ेगा. मैं एक पिरामिड बताऊंगा आपको कि एक स्केल की ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है. सबसे पहला चीज, द फर्स्ट थिंग दैट एनी स्केलेबल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड इज द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये वैल्यूज क्यों जरूरी है? ये वैल्यूज आपके हाईवे के व्हाइट लाइंस की तरह है, लास्ट बैटर में चलती है. These values are the reasons why you take big decisions and you know what to do when the decisions go wrong. मैं वापस रिपीट करता हूं, बड़े डिसीजन लेने में ये वैल्यूज आपकी मदद करती है, और वही डिसीजंस अगर गलत हो जाएं तो आपने उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए वैल्यूज जरूरी है. अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि बड़ा रेवेन्यू बड़ा करने के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे? राइट इट डाउन ऑन द चैट बॉक्स प्लीज. जस्ट राइट डाउन यस. Just write down yes. We are good with. I'm absolutely okay if you write down yes, right? That you'll have to take big decisions. Okay, if you intend to grow, you'll have to take big decisions, but those big decisions are not happening, or they are not happening on time. Kya problem hai? Big decisions are not happening, they're not happening on time. And if they're not happening, and they're not happening on time, typically the business is missing the values that you want to build the organization on. Only then you will be able to take those big decisions, because you are convinced that this is what you're supposed to do. This is your part of the story. Second is your mission. Why are you doing it? What is the purpose of why you doing wanting to scale the business? अब सर टर्नओवर बढ़ाना है, सर प्रॉफिट कमाना है, all of this is good, but if this is not larger than you, then you will not see results. क्योंकि ये जब तक नहीं बनता, तब तब तक अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट नहीं होता. इज दैट ओके? क्यों लोग काम करेंगे आपके साथ? अगर अगर मिशन बड़ा नहीं है तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो छोड़ के अपना कुछ शुरू कर देंगे या दूसरी नौकरी में चले जाएंगे. सो इफ यू वांट पीपल टू बी कनेक्टेड, देयर हैज टू बी समथिंग दैट कनेक्ट्स देम इमोशनली. ओके, let's look at the third part of it. The third part of it is your vision. अब दिस विजन इज ऑफ 3 years 5 years. क्यों? डायनेमिक है नेचर में, वो वहां पहुंचने के बाद आप चेंज कर देते हो, राइट? सो विजन ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके लोगों को, आपके कस्टमर्स को, आपके आपके वेंडर्स को, आपके बैंकर्स को ये बिजनेस क्या करना चाहता है, ये क्लियरली समझ में आए. ये क्लियरली समझ में आए. अब जब तक ये क्लैरिटी आप में नहीं है, आप लोगों को दे नहीं पाते. और बार बार हम कहते हैं नहीं सर, मेरे दिमाग में सब कुछ है, मेरे एक बार बताने से नहीं होगा, मेरा कितनी बार इनको बताने का. ये जो आप थकते हो, या फ्रस्ट्रेट होते हो, या इरिटेट होते हो, ये इसी वजह से होते हो क्योंकि इसे कैस्केड नहीं किया गया. मैं एक सिंपल सा उदाहरण हमेशा देता हूं कि जंगल का राजा शेर है, राइट? पर जंगल का राजा शेर है ये किसने बताया? किताबों में पढ़ा है, पिक्चरों में देखा है, नाना नानी की स्टोरीज में सुना है. शेर को राजा की तरह कहा जाता है, तब जाके शेर को हमने राजा की पदवी दे दी. बट फंडामेंटली द साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज सेम इंफॉर्मेशन. इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. सेम इंफॉर्मेशन repeated over a period of time in various forms creates a belief.
जब तक आपके कस्टमर्स आप पे बिलीव नहीं करते, जब तक आपके कस्टमर एम्प्लॉयज आप पे बिलीव नहीं करते, बैंकर्स बिलीव नहीं करते, तब तक वो आपके बड़े डिसीजन में आपका साथ नहीं देते. How many of you agree with what I'm saying? Just write it down on the chat box. कि अगर मुझे बड़े डिसीजन लेने तो इन सबका साथ होना जरूरी है. अगर ये साथ में नहीं है तो बड़े डिसीजन नहीं ले पाता. अगर बड़े डिसीजन नहीं ले पाऊंगा तो बड़ा बनूंगा भी नहीं. सो ये जो इमोटिव पीस है, द इमोटिव पीस ऑफ योर बिजनेस इज बिटवीन इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स, माय फ्रेंड्स. ओके, इट्स अ जर्नी बिटवीन इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स. So if this economics is not being set, emotions are not being set well, your economic will always be going up and down. So first job in the scalability process is to write down the vision, values, and mission of the organization, of how this organization, why this organization exists, where do you want to go, and how would you go where you have to go. 3 सवालों के जवाब ये आपके दिमाग में दिमाग से उतर के पेपर पे आने बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर की इज्जत है, आपके दिमाग की इज्जत नहीं है. एंड us as a consulting company, we don't work with any company who does not have vision, values, and mission. If they don't have, and we see that the business has the potential, we ask them to sit through a program. Okay, we build this for you and then start consulting. Before that, we don't even start consulting, because if you are not clear of where to go, nobody in the world can help you, in giving you all whatever consulting. कितने भी मैकेनिज्म लगा ले, कितना भी प्रोसेस लगा ले, मेरे को आदतें ही चेंज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, तो वैसे ही चलना है. सो दिस इज सेटिंग फॉर फेलियर. And honestly, we have got a 100% success rate because of the same thing, that we are robust on these 3 aspects of business. That takes us to the next part of it. Once you have all of this very, very clear, then we say strategy has to be built. रणनीति को बिल्ड करना पड़ेगा. अब रणनीति का मतलब क्या है? इसका मतलब ऑपोजिट कोई है. अब ऑपोजिट कौन है? ऑपोजिट शायद कंपटीशन है, ऑपोजिट शायद नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं, ऑपोजिट शायद वो ब्याज है जो मैं ज्यादा भर रहा हूँ, ऑपोजिट है वो वेंडर जो मुझको टाइम पे माल नहीं दे रहा, ऑपोजिट है वो वेंडर जो जो शायद मुझे क्वालिटी नहीं दे रहा, ऑपोजिट है मेरे लोग जो इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ऑपोजिट है वो मार्केट जिसे जिसे समझ में नहीं आ रहा मैं बेच क्या रहा हूं. राइट, ये सारे ऑपोजिशन में है. इन ऑपोजिशंस को पे मात करने का तरीका इस स्ट्रैटेजी, क्योंकि रणनीति है ना, वो तो रण है. इसका मतलब 2 लोग होने चाहिए, इसका मतलब ऑपोजिट पार्टी होनी चाहिए. हु इज ऑपोजिट? ऑपोजिट इज कंपटीशन एंड नॉन कॉम्पिटेंस. व्हाट इज इट? कंपटीशन एंड रादर इनकॉम्पिटेंस. दैट इज द ऑपोजिशन. सो उसको मैं कैसे डेवलप करूं, इसकी रणनीति होनी चाहिए आपके पास. अब जब एसआईएल ये काम करती है, लगभग 90 दिन लेती है. मेरी टीम आपकी टीम्स के साथ काम करती है और 90 दिनों में हम ये स्ट्रैटेजी लिखते हैं कि इस विजन पे पहुंचने के लिए, इस मिशन पे पहुंचने के लिए, इन वैल्यूज के साथ काम करने के लिए इस बिजनेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिस वजह से ये कंपनी आज 50 पे है तो 500 पे पहुंचे, 100 पे है तो 1000 पे पहुंचे, या 10 पे है तो 100 पे पहुंचे. वॉट एवर इज दैट, इट डजेंट मैटर. राइट नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज यू राइट डाउन द स्ट्रैटेजी of how to win. Once you write that down, that strategy gets broken down into goals. फिर शायद 3 साल की स्ट्रेटेजी लिख दी, तो 3 साल में 12 क्वार्टर्स होते हैं, 12 क्वार्टर्स और 36 महीने होते हैं. तो हर क्वार्टर में हम क्या अचीव करेंगे? जैसे टू गिव एन एग्जांपल, पहले साल में रणनीति हो सकती है आईटी ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटाइजेशन. राइट, दूसरे में हो सकती है, या पहले साल में 3 ऑब्जेक्टिव निकल के आए. क्या निकल के आए रणनीति से? कि पीपल डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशन, ये 3 चीजें निकल के आई. तो ये 3 मेजर गोल्स हो जाते हैं जिस पे संस्था ने काम करना चाहिए. तभी जाके आप आगे बढ़ोगे. वैसे एक साल में 5 या 6 गोल्स लेके हम उस पे काम करते हैं. वैसे 3 साल की कंसल्टिंग में या 3 साल काम करके उन रिटर्न गोल्स पे काम करके, यू सी दैट यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज जितना 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ पे पहुंचने की चाह है, वहां पे रहना भी उतना ही जरूरी है जब वहां पे पहुंचे. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. अब ये डिटेलिंग होना शुरू हो जाती है, माइलस्टोन्स. ओके, कि मैं वहां पे पहुंचा हूं ये कैसे पता चलेगा? गवर्नेंस.
उस मैं पहुंचते वक्त क्या गवर्नेंस होना चाहिए, लोगों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, मेरे एआरस कैसे कंट्रोल में होने चाहिए, मेरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन की सॉरी माय माय कॉम्पनसेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरी प्रोसेस की प्रोसेसेस क्या होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज गवर्नेंस पार्ट दैट टेक्स कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर ये गवर्नेंस नहीं है तो हमें उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका बड़ा 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 आसान सा तरीका है। आप स्वच्छ भारत मुहिम को देखिए। गवर्नेंस को जब यह समझ में आया कि कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो रूरल पॉपुलेशन को स्वच्छ की तरफ ले जाना पड़ेगा, अर्बन पॉपुलेशन, आपकी सिटीज को स्वच्छ करना पड़ेगा। सो स्वच्छ भारत मुहिम ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ। अब आप देखिए वैल्यूज में क्या था, मिशन में क्या था, विजन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 तक, फिर रणनीति लिखी गई, अलग अलग रणनीति आई, राइट। हमें मनरेगा स्कीम आ गई, हमने डिजिटाइजेशन इंडिया का कर दिया, हमने स्वच्छ भारत मुहिम, जब मैं ये कह रहा हूं हमने मतलब हम वी एज इंडियंस, ओके, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप टू सम ऑफ बट किसने किया, गवर्नेंस था, गवर्नेंस की पॉलिसीज लिखी गई, इसी वजह से प्रोजेक्ट्स वह उस तरीके से निकले। प्रोजेक्ट के बेसिस पे एसओपी निकली, विच इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसीलिए जेम पोर्टल आया, प्रोक्योरमेंट सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम आई, इसीलिए इंडियन डिफेंस डिजिटाइजेशन हुआ या इंडिजिनाइजेशन शुरू हो गया, रेलवे इंडिजिनाइजेशन शुरू हो गया, रोड्स बनना शुरू हो गए। क्यों हुआ, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, एसओपीज आए और उस एसओपी के अगेंस्ट बजट हुआ। तब बजट को बजट नहीं अपने पास, अब समझ में आता है यार पैसे नहीं, अब क्या करें। फिर जाके वर्ल्ड बैंक के पास गए, फिर जाके फॉरेक्स के पास गए, फिर जाके पार्टनरशिप्स बनाए, फिर जाके अलाइज बनाए अलग अलग देशों के। तो ये देश कर रहा है, वैसे ही बड़ी कंपनियां भी चलती हैं, वैसे ही छोटी कंपनियां भी चलती हैं, क्योंकि ये आदतें हैं एक संस्था को चलाने की। अगर ये आदतें नहीं पिकअप करी गई, अगर ये प्रोसेसेस सिस्टम्स इस तरीके से ड्राइव नहीं किए गए, तो संस्था स्केल होके भी रुक जाती है। तो अगर आप 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचे हो, वो 50 करोड़ से आगे 100 करोड़ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे गलतियां हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दोस्तों, 24,000 एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा चुका हूं, 700 से ज्यादा कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हमने एज अ टीम, एज कंसल्टिंग कंपनी पूरे करे हुए, ओके। और एक कॉमन पैटर्न जो मुझे दिखा है वो है फाउंडर्स क्लैरिटी। एक कॉमन पैटर्न जो मुझे दिखा है सब में इस फाउंडर्स क्लैरिटी ऑफ ग्रोथ। जितना वो क्लियर है उतनी संस्था तेजी से आगे जा रही है। एंड द लास्ट पार्ट इज योर प्रॉफिट्स। अब हम उल्टी संस्था चलाने की कोशिश करें, हम सब चीज प्रॉफिट से देख रहे हैं, ओके। उल्टी चलाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नीचे वाला लेयर है ना, प्रोजेक्ट, एसओपी, बजट और प्रॉफिट्स, ये बड़ा डायनेमिक लेयर है, हमेशा हिलते रहेगा। जैसे गवर्नेंस में जैसे जीएसटी आ गया था, इफ यू रिमेंबर, सारे हिसाब किताब चेंज हो गया था सबका, राइट। बीच में ही मोनेटाइजेशन आ गया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आ गया, उसके बाद कोविड आ गया। जैसे जैसे वो बड़ा डायनेमिक होता है नेचर में। अगर हमारी वैल्यू सिस्टम सही नहीं होती तो हमने, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमने देशों को एक्सपोर्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट किया। ये हमारी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है, एज इंडियंस वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। वैसे ही आपकी संस्था का कोई वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम शायद आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हो। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसे अनाउंस कर सकते हो, आप उसे मिशन में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके पीछे एक ऑडिशियस विजन लगा सकते हो जिसकी रणनीति लिखी है। Okay, how many of you are liking what I'm sharing, by the way? Please give me a thumbs up and say this if this is valuable to your business. If अगर मैंने सोच लिया कि धंधा ऐसे चलाना है, it is valuable to your business. Okay, so this is how you build a scalable organization. So I'm while I have told you now, I'm going to take you through step by step each detailed process of how to do this. Okay. And after this, my only humble request here is that how many of you want to build your values, mission, and vision? Just write it down quickly on the chat box. How many of you would want to build your vision, mission, and statement? Just write it down. I would want to, or I. तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं. Just write it down on the chat box.
Great, fantastic. Okay, I think the batch would be starting very soon. Whoever is not clear about that, please be a part of it. And whoever feels, no, I'm clear about it, then we will talk a little later on the strategic piece or consulting piece. Okay, but please make sure that you are clear about this thing. Now, it is very important. Okay, why is it important? It is immaterial. धंधा चले कि नहीं चले, that's a different story. Okay, पर अपनी जिंदगी के लिए तो clear करो ना. For you as personal human being, isn't it important that you should know where you want to go? घर से अपन गाड़ी नहीं निकालते जब तक ये पता नहीं चलता जाना कहाँ है. धंधा कैसे चला सकते हैं यार? Right? So this is something that I will now share with you. Just give me a moment. I'm going to take you through a mind map. Okay. Before I move ahead, all of these are big companies now. When I say big companies, they have become ME or large enterprises. Now these are companies. Okay. EC, this is manufacturing, trade, technology, light engineering, FMCG, project and engineering base, retail, real estate, logistics, robotics. ये अलग अलग कंपनियों के साथ हमने कंसल्टिंग करी हुई है एंड ये इनके नाम है, इनके रेवेन्यूज हैं. राइट. ईसी इंडिया हैज ग्रोन फ्रॉम 18 crores to 242 crores in 36 months. But in the same manufacturing, there is Anand Defense System who's grown from 5 crores to 50 crores in 45 months. Okay. Similarly, there's a company called Akshay Agro. तब हम उस लेवल की कंपनियों के साथ काम कर लिया करते थे जो 1 crore 2 crores पे हैं. 1 crore to 6 crores in 24 months. Then we have Integral Technologies, which is 4 to 12. Strato from 2 to 26 in 72 months. Okay, look at the number that they have grown. Varat from 4 to 16 in 24 months. Dive from 55 to 158 from 24. This is a Denmark-based company. This is not an Indian company. This is a Denmark-based company. Venture Steel has gone from 8 to 22. Garner Needs has gone from 3 crores to 110 crores in 5 years. Okay. Nira Valley has gone from 10 crores to 90 crores in 36 months. Sachi has gone from 42 to 86 in 12 months. M Square has gone for, by the way, this company is now into listing procedures, 18 to 90 crores. Siddhivinayak has gone from 22 to, I'm so sorry here, this company has now moved to 55 crores. Yesterday, I took a stock of it. The closure is at 55. BS Project has moved from 12 to 34. Neologic has moved from 90 to 186. MSM has gone from 5 to 65. Venture Steel has gone from 4 to 40. One Yard, which is a retail store, has gone from 3 to 9. So What, which is again a retail store, has gone from 10 to 26. Real estate are big numbers, 42 to 120, 80 to 600, 150 to 800. Taj is 45 to 110. Logistics, Alligator has moved from 5 to 100 and 8 to 90 is integrated robotics. So if you really notice, ऐसे कैसे हो सकता है? Thank you Rajiv, thank you very much. ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्रीज की हैं? ओके, ये कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्रीज की हैं पर फिर भी हम इन पे इम्पैक्ट डाल पाए. मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमने किया, मैं ये कह रहा हूं कि हम हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने इन कंपनियों को इन्फ्लुएंस किया, प्रोसेसेस सही लगाए. आप अपना धंधा सही जानते हो पर शायद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्केल के नहीं जानते या शायद उसका एक्सपोजर नहीं है. नथिंग रॉन्ग. बट अगर वक्त पे ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस संस्था में लाए गए, अपने आप धंधा ऊपर जाना शुरू होता है और हम उस विजन पे चल रहे हैं ना बेसिकली. सो व्हाट वी डू इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर स्केलिंग बिजनेसेस. What we build in your business are the management practices. Okay, so that takes us to the next part of it. कि हम किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं. So I'll take you through all the 11 steps of consulting. How many of you excited? Just let me know. How many of you are ready to learn all the steps? Okay, all these steps. ये steps build करने पड़ेंगे. अच्छा, आप, it doesn't matter whether you are a 10 crores business or a 100 crores business. If you want to go from 10 to 100, same processes. Same process, okay. Same process. The process depth will change if you're 100 crores to 1,000 crores per person, but the process flow is going to remain same, right? Now, while I'm going to share you this, ये सब मैं आपको बता रहा हूं, उस पे आपको ये समझ में आ जाएगा दो चीजें कि डेप्थ क्या होनी चाहिए स्केल करने की.
विचारों की डेप्थ क्या होनी चाहिए, स्केल की डेप्थ क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इट्स अ गुड गुड प्लेस टू बी इन, क्योंकि जब नई चीज आती है तो पहली चीज आती है डिनायल, दूसरी चीज आती है कंफ्यूजन, तीसरा आता है कमिटमेंट, चौथा है अटेनमेंट। दिस इज अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस बाय द। सो अगर ये सारी बातें सुन के ऐसे लग रहा है यार ये बहुत है, तो ये सही चीज सही जगह पे हो, राइट। लेट्स लुक एट दिस। जब हम कंसल्टिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पहले 90 दिन में एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं? कैन यू रिपीट द फोर स्टेप्स? यस, डिनायल, कंफ्यूजन, कमिटमेंट एंड अटेनमेंट। ओके, और फिर सर्कल चलता है, आप उधर जाके सेटल हो जाते हो, फिर कोई नई चीज आती है, फिर डिनायल आता है, फिर कंफ्यूजन होता है, फिर कमिटमेंट आती है, नहीं ये करेंगे। या तो आप कमिटमेंट में चले जाते हो या तो आप डिनायल में चले जाते हो। कंफ्यूजन से कहां जाते हो? या तो डिनायल में या तो कमिटमेंट में चले जाते हो। अगर कमिटमेंट कर दिया तो उसकी आदत लग जाती है, वो अटेनमेंट में आ जाता है, वापस कोई नई चीज आ जाती है, वापस डिनायल शुरू हो जाता है। अब इंसान जितनी जल्दी इस डिनायल मोड से निकले, जितनी जल्दी इस इंसान या टीम्स, व्हेन आई से टीम, जितनी जितनी जल्दी इस डिनायल मोड से निकले, जितनी जल्दी इस कंफ्यूजन मोड से निकले, उतनी जल्दी कमिटमेंट और अटेनमेंट लेवल पे आते हैं। पर अगर विजन सही नहीं है, वैल्यू लिखी नहीं है, विजन लिखा हुआ नहीं है, तो इस डिनायल में बैठे रहता है, बार 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 खेलते रहता है, उसमें जस्टिफाई करते रहता है अपने आप को, अपने आप को, जो मैं सही कर रहा हूं वही मैं जो कर रहा हूं वही सही है, राइट राइट। नाउ when we start the consulting process in the first 90 days, what do we do? In the first 90 days we do a developmental audit, we align the future, and we write down the strategy. So what do we do in developmental audit? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑडिट, कि आप जहां पे हो और जाना चाहते हो क्या ये मैच हो रहा है। पीपल कॉम्पिटेंसी, आपके पास जो अभी लोग हैं वर्सेस जो लोग होने चाहिए, क्या वो सेम है। मार्केट एंड सेल्स प्रेजेंस क्या है, उसका ऑडिट किया जाता है। प्रोसेस अधेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका ऑडिट किया जाता है। सिस्टम और ऑटोमेशन क्या है अपने पास, उसका ऑडिट किया जाता है। मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग टूल्स क्या है, उसको देखा जाता है। और फाइनेंस ऑडिट किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस का एज इज पोजिशन क्या है। ओके, और ये हम तब करते हैं जब आपका विजन, मिशन और वैल्यूज क्लियर है, रिटन डाउन है, क्लियरली डिक्टेट किया हुआ है कि दिस इज वेयर वी वांट टू गो, दिस इज हाउ वी वांट टू गो, दिस इज व्हाई वी वांट टू। तब जाके ये प्रोसेस शुरू होता है। वंस यू डू दैट, then we do something called as alignment to the future. What is that alignment? Building up the strategy, as I said. This is all part of the strategy, okay? Understanding the values of the people working in the company. आपकी तो वैल्यू एक है, क्या लोगों की वैल्यू मैच हो रही है? विजन, नया बड़ा विजन क्या है, ये लोगों को पता है क्या? पर्पस स्टेटमेंट क्लियर है क्या? 36 मंथ्स का मैक्रो प्लान लिखा गया है क्या? सो लिखा गया है, इज व्हाट वी स्टार्ट राइटिंग डाउन। क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ प्रोडक्ट सर्विस पोर्टफोलियो, राइट। नई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्योंकि उल्टा करना है दोस्तों। तीसरे साल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिठा के फिर पीछे से आज से काम शुरू करना, राइट। हम ये जो आइटरेटिव तरीका यूज करते हैं, इससे स्केल नहीं होता। आइटरेटिव तरीका मतलब करके देखते, देख के करते, वो वाला आइटरेटिव तरीका, राइट। पर प्रिडिक्टिव is the way of doing it. What is it? Write down the word, if you have a pen and paper. It's called predictive modeling of your business. You got to be able to predict your future. You got to be able to predict your, when I say future, business future, okay, predict your manpower, predict your products, predict your market, predict your finances. Your balance sheet has to be ready. There is a method called annual operating plan. Through that we build your balance sheet before the year starts. So the consulting projects that I showed you right now, their balance sheet for 26-27 is ready today. It is 1st of April, by the way. It is ready. So the entire team exactly knows how the business and where the business will reach by the end of the year. 5-10% इधर उधर गिरता है, पर पहुंचता उधर ही है, क्योंकि लोग डिजायर्ड चीजों पे काम कर रहे हैं, जो पास्ट है उस पे काम नहीं कर रहे, राइट। सो ये ऑर्बिट को शिफ्ट करने के लिए हम कहते हैं जनरली 18 महीने जाते हैं। लोगों को प्रोएक्टिविटी आना, वो लथार्जी निकलना, उस प्रोसेस को उस तरीके से देखना, शायद कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, ये सब करने के लिए कम से कम 18 महीने लगते हैं। और एट 18 मंथ्स के बाद यू सी अ रॉकेट फ्लाइंग, राइट। सो अलाइनमेंट कर लेते हैं। वंस वी फिनिश द अलाइनमेंट, वी स्टार्ट, वंस ऑल द डेटा इज इन प्लेस, वी स्टार्ट बिल्डिंग द स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेस। सो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? पहले तो स्ट्रेटेजी कैनवस,
राइट, कि मेरा कंज्यूमर का पर्सोना क्या है, मेरे एम्प्लॉय का पर्सोना क्या है, मेरे स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, मार्केट में किधर किधर बेचूंगा, क्या क्या प्रोडक्ट बेचूंगा, कितना बेचूंगा, राइट, मेरे फाइनेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या। सो कस्टमर कैनवास क्या है, कस्टमर कैनवास मतलब वो लोग जो मेरा माल खरीदने का पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी है पूरी। अच्छा, बाय द वे, few people only operate in Maharashtra, few people only operate in Delhi. We generally, when we write down the strategy, we focus global. Why should we focus global? Because it is global in nature. Market is always global in nature. You may not be able to serve them today, but you are not thinking about serving them is a crime. आज शायद मैं उसको नहीं बेच सकता, पर तीसरे साल के बाद 100% यस। ओके, क्रिटिकल प्रोसेस क्या है, उस पूरे प्रोसेस में अगर मैं आज 20 करोड़ का धंधा 200 करोड़ पहुंचाना चाहता हूं, तो क्रिटिकल प्रोसेस क्या ध्यान में रखने पड़ेंगे। सैंडबॉक्स क्या है स्केल का, सैंडबॉक्स का मतलब वो एक्टिविटीज जो मैं रेज, रिड्यूस, क्रिएट, एलिमिनेट करूंगा, जिसके वजह से मैं स्केल कर पाऊंगा। क्रिटिकल पीपल बिहेवियर्स क्या है, कि ये इस बिहेवियर को अपलॉड किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, और इस बिहेवियर को राम राम किया जाएगा। क्या बिहेवियर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है। ये करने के लिए देर आर स्ट्रेटेजिक टूल्स, वी यूज दीज 12 स्ट्रेटेजिक टूल्स to make sure that we are able to come to a result. What are those? RRC, grade, value versus effort, capability matrix, classification, customer graph, design thinking principles, strategic canvas. अब दोस्तों ये सब सीख के कब करोगे, इसीलिए ये आपको सीखना नहीं है, आपका काम ये सीखना नहीं है, आपका काम ये किसी के साथ मिलके करवा के लेना है। योर जॉब इज नॉट टू बिकम अ कंसल्टेंट, योर जॉब इज टू हायर कंसल्टेंट्स, अ टीम ऑफ पीपल हु इज वर्किंग ऑन द विजन दैट यू हैव रिटन डाउन एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज रीचिंग। करना ये आपका काम नहीं है, करवाना ये आपका काम है, पर ये कब करवा पाओगे, जब ये क्लैरिटी आपके हाथ में है, जब ये रणनीति आपने लिख दी। once we finish that, we start building execution discipline. ये सारे कंसल्टिंग में हम क्या करते हैं ये बता रहे हैं हम, राइट। अंडरस्टैंडिंग द लीन प्रिंसिपल्स, एग्जीक्यूशन का रिदम, आपके कैलेंडर के साथ आपकी पूरी संस्था का कैलेंडर, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या है, रिव्यू कब होगा, कैसे होगा, क्या फॉर्मेट में होगा, इंडेक्स क्या होगा, किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि वो रिव्यू दे पाए, किससे उनको मदद की जाए। अलग अलग कंसल्टेंट्स काम करते हैं। ब्रैसी ग्रिड का मतलब क्या है, इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स, कि हर बंदे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी पता है। पीएमआई स्टैंडर्ड, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स कहते हैं, दीज आर वर्ल्ड गवर्न स्टैंडर्ड्स जो हम यूज करते हैं टू रन एनी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स। कैलेंडराइजेशन ऑफ द इंटायर एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। Once we reach, this is how, this is the execution is already started. Then we start building the leaders, hiring करना, उनको ट्रेन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर, 36 मंथ्स का मैन पावर का प्लानिंग। अपन क्या करते हैं, अब भी उठाते हैं लोगों, नहीं 2 महीना 3 महीने में, इस साल कितने लोग लगेंगे, ऐसा सवाल पूछते हैं अपन। 36 मंथ्स की रोबस्ट प्लानिंग होती है, जहां पे अपने को मालूम होता है कि कौन सा आदमी कब आएगा और कितना करेगा। ओके, क्रिएटिंग ईयरली ट्रेनिंग प्लान फॉर द डेवलपमेंट एंड लीडरशिप करिकुलम सेट किया जाता है। प्रोसेस डेवलपमेंट में, दिस इज द प्रोसेस डेवलपमेंट। हम, ये आप सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहां पढ़िए आप ये जो लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट मे हैव different names as per the strategy document, it does not matter. However, a process book becomes a Bible or a Bhagavad Gita that everybody calls this as, say, assuming it's SIL, it is SIL's way, our way of doing the business. तो कोई नया बंदा आए, नई बंदी आए, कोई छोड़ के चले गए, कुछ नहीं, ये बुक देना है, उसको बोलना है पढ़ो, और पढ़ने के बाद टेस्ट लो और उसको काम पे लगाओ, राइट। नाउ वंस यू डू दैट, वंस वी do all of this that is physically possible, पेपर पे हो गया, then we start moving on automating and standardizing. So क्या क्या ऑटोमेट करेंगे, क्या क्या स्टैंडर्डाइज करेंगे, जहां जहां पे भी तरीका है, HRMS है, ERP है, CRM है, टैली है, FST है, LMS है, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। we if it is there with you, we use them. If it is not there, we come together, we hire the right partner, get it executed for you, along with you, of course, your teams. Once you do that, we move on to product improvement. अब
प्रोसेस बन गया है, सिस्टम बन गई है, लोगों के लिए सही बन गया है। नाउ वी लुक एट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नया प्रोडक्ट क्या इनोवेट करें, किस तरीके से नया मार्केट में जाए, किस तरीके से कोई आउटसोर्सिंग एजेंसीज है, वी बिल्ड देम ऑन टीम, वी मेक श्योर दैट एनपीडी इज अ इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ स्केल। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ स्केल। ओके, फ्रॉम देयर वी मूव ऑन टू मार्केट इंप्रूवमेंट, कि अब नया मार्केट कैसे ढूंढे, और राइट, प्रोडक्ट मिक्स वर्सेस मार्केट, सेल्स टीम की हायरिंग, सेल्स टीम को ट्रेन करना। लास्ट पॉइंट हम हमेशा देखते हैं एसएमईज में कि या तो जो ओनर होता है वही सबसे अच्छा सेल्समैन होता है। ओके, और उसको रिप्लेस कैसे किया जाए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ आवर स्केलिंग। ओके, this is all what we build in the sales part of it, which is working controlling and measuring monitoring system, motivating and engaging team, sales incentives कैसे दिए जाते हैं, review कैसे लिया जाता है, all of that, reward system, and being a guide and a mentor to the sales team to move forward. That takes us to the finance piece of it. Sanitization of full accounts, building mechanisms of promoters wealth creation. आप wealth कब बनाओगे? तो पहले स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं तीसरे साल के एंड में आपके जेब में पैसा कितना, राइट। अलाइनिंग, अब वो ऐसे लिखने के लिए नंबर नहीं आता, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ वर्क इज डन देयर। कैश को मेजर कैसे करेंगे, एवरीडे कैश मेरे पास आ रही है, इसको मेजर कैसे करेंगे, राइट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करेंगे, इंटरनल फाइनेंस टीम को एम्पावरमेंट कैसे देंगे ताकि वो डिसीजन ले पाए, फंड रेजिंग कैसे करेंगे, अगर डेट लाना है, इक्विटी लानी है कैसे करेंगे, रिपिटेशन ऑफ बिजनेस फंड्स कहां से आएंगी, और रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस बोर्ड ये कैसे होगा। तो दिस इज हाउ द फाइनेंस पीस वर्क्स। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के नजदीक तीसरे साल में आते हैं, वैसे अगर कोई लोग बचे हैं जिनको हायर करना है तो हायर कर लेते हैं, उनको सारी चीजें सिखाते पढ़ाते हैं। ऐसे पकड़ो कि हम अब 30 महीने हो चुके हैं, ये लास्ट 6 महीने का काम है। हम लर्निंग ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस ट्रांसफर करते हैं, सिस्टम ट्रांसफर करते हैं, बिहेवियर्स ट्रांसफर करते हैं, और लगभग 12 वीक के लिए उन सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को कोच करते हैं कि किस तरीके से करना है ये सारी चीजें। करते वक्त तो बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, पर अब बड़ा स्पेसिफिक तरीके से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। नाउ क्रिएटिंग द लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दिस इज कंसल्टिंग दैट वी डू, एंड दिस इज हाउ कंसल्टिंग नीड्स टू बी डन। Why am I saying this? It's not because we are doing it. It's because that's how the top big 5 consulting companies do. Every management consulting company, whether it is KPMG, it's Bain, KPITs, or McKinsey's, all of this use this method, but they don't work for ME and SME businesses. In the last 11 years, we have implemented those fantastic global methodologies of consulting in the ME and SME businesses. And hence, we have been able to get these fantastic results. But the journey starts with creating your vision, your mission, and the values of the organization. If people feel that, okay, this is the team, this is, once you work with us, you will see a big team, right? This is a team I want to partner with. इनसे पढ़ने लिखने जाना ये नहीं है बोल, partner with. I invite you, for people who have not written down your vision, your mission, your values, write that down. Okay, immaterial whether you work with us or no, write that down, because that is critical for your business and for your life. So write that down and understand from my team in detail कि ये strategy consulting कैसे होती है, implementation कैसे होता है, execution कैसे होता है, सारी चीजें पूछ लीजिए। And once you want to validate कि यार मेरे को अब समझ में आ गया, मैं बस एक बार चेक करके देख लूं, please come to Burning Desire and see what we do. Okay, once you get your experience, once you get your understanding on that, you see the magic that can happen. Because I think more than consultants, we are good human beings. We can be trusted, that I can guarantee. Okay, I still don't claim I'm the best consultant in MSMEs, okay, or whatever it is, right? But I can guarantee you that you can trust me blind faith. Okay, you can trust the business that we have built, the consulting that we've built, blind faith. This is something that we've always committed, and we will always stick to it. So thank you very much, all of you, for being a part of this. The batch for Burning Desire starts on 10th of April. Okay. Before that, speak to my team members, understand the entire consulting process. Okay.
आप आज करो या नहीं करो is a different story, but understand the entire consulting process. And once you understand the entire consulting process, register yourself on 10th of April. It's a fantastic event. 6 days I will sit with you digitally. Every day morning we will be talking. I will help you build your entire vision, mission, and values. And we're not going to stop there. We're going to all meet again. There's a 1 day conference also with it. So my team will explain you all of that. Please be there. And if you feel that these are partners that I can, as I said, we yeah, if you want to, don't look at us as teachers. Okay, look at us like problem solvers. That's what we do. Okay, please do not look at us as oh ये टीचर है, ये हमको ये प्रोसेस सिखाएंगे. नहीं, हम सिखाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में रहेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके ट्रांसफर करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे. That's what our job is. And that's what we've been doing for the last 10 years. Now 11th year, of course, and I hope to do it till the last breath of my life. So thank you very much, Rajiv. My team will send you the link right now. You can definitely register and be a part of this fantastic process. Thank you very much, everybody. God bless. Can I ask my team to show the testimonies that people have gone through, the strategy document that is written down, the burning desire that is written down? Please go ahead and see what we have done. When is it happening after 10th? That I'm not sure, my friend, but 10th it is definitely happening. You can definitely be a part of that. And it is digital. It does not matter where you are. You can definitely sit through it. Thank you very much, everybody. God bless. God bless.